अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब बट और आज की पुकार में आपको दिखाएंगे कि अपने ही जिले में शहजादे को पत्थर किसने मारे। कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी सुनाने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ, जरा वीडियो देखें। मैं इस वक्त जिला गुजरात में मौजूद हूँ। ये कोटला का इलाका है। कोटला के इलाके के अंदर ये जो वीडियो आपने देखी है, इसमें जो साहब पुलिस के झुमगट्टे में बच के भाग रहे हैं, कहा जाता है, हमने सुना है शहर में कि गुजरात चौधरियों का है। चौधरी से मेरी मुराद चौधरी बरादरान का है, चौधरी परवेज लाई, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी फजाहत हुसैन और उनके तमाम खानदान का है। ये जो साहब पत्थरों से छुप के भाग रहे हैं, जो वीडियो में आप देख रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, थोड़े हेल्दी हैं, ये चौधरी वजाहत हुसैन के छोटे साहबजादे हैं। हुसैन इलाही साहब से छोटे हैं। इनका नाम है मूसा इलाही। और ये भाग क्यों रहे हैं, आज के शो में आपको ये सारी कहानी बताएंगे। और ये पत्थर कौन लोग मार रहे हैं हमारे शहजादे को, ये भी हम आपको बताएंगे कि गुजरात का जो जिला है उसने हकीकी आजादी क्या सच में पाली है? क्या वो मुर्सी सियासत से आजाद होने जा रहा है? क्या गुजरात का जो जिला है वो अब चाहता है कि इमरान खान साहब ठीक कहते थे, हम मुर्सी सियासत के पीछे नहीं भागेंगे, हम असली लीडर के पीछे जाएंगे। तमाम कहानी को आज आपके सामने खोल के रखेंगे। पत्थर क्यों मारे, किसने मारे, भागे क्यों और पुलिस ने रोका क्यों नहीं, और पुलिस वहां मौजूद थी तो क्या कर रही थी, ये तमाम बातें आज आपको शो में दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वकूआ की होया मैं दसो। वकूआ है भी ਅਸੀਂ ਤਜਾਜ पे करने। अच्छा, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 300-400 ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤੀ ਲਾਣੀ ਸੀ ਚੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਜਾਜ ਇਹ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤਖਤੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤਜਾਜ पे ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਹੈ ਸ਼ੇਬ ਬੱਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਂਡ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਏ। ਗੇਟ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਐਚਓ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਐਸਐਚਓ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਨੇ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਆ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ, ਅਸੀਂ ਡੱਕਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦਬਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੌਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਟ ਛੱਟ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਥਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤਖਤੀ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨੱਸ ਪਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੀਡੋ ਸਪੀਡ। ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਥਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰੇ। अच्छा, फायरिंग भी की थी? फायरिंग की थी। आपने वो भी करवाया? जिसले उस तो उत्ते चढ़े ने ना ਇੱਥੇ ਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰੇ। ਦੌੜੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਨ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਥਰੋਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਨਸੇ ਨਸ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਚੜ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਹੈ, ਡੀਟੀਐਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਮੂਸਾ ਲਾਈ ਨੂੰ, ਧੜਾਉਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਭ ਇੱਥੇ ਟਹਿ ਪਈ ਹੈ ਮੂਸਾ ਲਾਈ ਦੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੱਜਦੀਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰੇ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 20 30 ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਥਰੋਹ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੁਲ ਹੈ, ਪੁਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਛਾਤੀ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਪਥਰੋਹ ਤੋਂ ਤਜਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਹਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ 34-35 ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ 150 ਬੰਦੇ ਨਾਮਲੂਮ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਪੇਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਪੇਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਾਂਜੀ ਮੋਨਸਲਾਈ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਮੋਨਸਲਾਈ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਸਪੇਨ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਓਹੋ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ।
की मीडिया दी ना सपोर्ट होवे तो मेरा हाल कोई रात भी ना रोवां। मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की मिट्टी, ये तमाम चीजें जो हैं खूबसूरत हैं, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ इस मुल्क में ज़रखेज़ ज़मीन है, ज़रखेज़ लोग हैं, लेकिन मैं एक चीज़ पे बड़ा खुश हूँ आज, वो ये कि मुल्क के जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ये जानते जा रहे हैं कि उनका हक क्या है। वो जो मरूसी सियासत है, मरूसी जो लोग जागीरें समझ लेते हैं, उससे बाहर निकलते जा रहे हैं। आपने देखा, अब तो कहानी के सारे एंड आपको बताने बड़े जरूरी हैं। एक जिम्मेदार सहाफी की ये ड्यूटी है कि वो कहानी के सारे एंड आपको बताए। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं, जुल्फिकार साहब हमारे साथ हैं, और वो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मूसा इलाही साहब से राब्ता हो जाए या उनका कोई नुमाइंदा हमसे बात कर ले। अभी तक हम ये कोशिश कर रहे हैं और प्रोग्राम के आखिर तक हम यकीनन इस कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम पुलिस का वर्जन लेने के लिए पुलिस के पास गए, पुलिस ने क्या फरमाया वो जरा चल के देखिए। पुलिस का मौक़िफ़ लेने के लिए हम थाने आए हैं और थाने से बात हुई है। थाने जाकर ये पता चला है कि जहाँ पर जो इंचार्ज हैं उन्होंने हमें बताया, तनवीर साहब, उनका जो उनकी मुतय्यत में FIR दर्ज हुई है वो भी आप साथ चलती हुई देख रहे हैं। उन्होंने कहा दोनों पार्टी की तरफ से, यानी कि मूसा इलाही साहब की तरफ से भी और कोटला के जो शहरी हैं जिन्होंने पथराव किया उनकी तरफ से भी कोई इंटीमेशन नहीं था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभालने के लिए वहाँ पर गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोई कागज नहीं दिया कि यहाँ पर इनॉग्रेशन होने वाला है। वो कहता है वो टाल मटोल करते रहे। जो पुलिस है उन्होंने पूछा हेल्थ डिपार्टमेंट से कि ऐसी कोई इनॉग्रेशन होनी है, अगर होनी है तो बताएं, हम उसको सपोर्ट करते हैं, उनकी सिक्योरिटी फराहम करते हैं। लेकिन ऐसा कोई कागज वहाँ से भी फराहम नहीं किया गया। और कोटला के जो शहरी थे जो वहाँ पर जो एहतजाज कर रहे थे, उनकी तरफ से मौक़िफ़ ये है कि ये हमारे आबा अजदाद है, उनकी ज़मीन है, उन्होंने इसको डोनेट किया है हॉस्पिटल को, और वो हॉस्पिटल में अगर कोई दूसरा बंदा आके अपने वालिद साहब यानी ज़हूरुल्लाह साहब के नाम पे वहाँ पट्टी लगाना चाहे, तख्ती लगा के इनॉग्रेशन करना चाहे, सिर्फ इसलिए कि उसके जो ताया या चाचा जो उनसे हैं वो वज़ीर आला हैं, तो वो कुछ भी कर सकता है, तो उस पर वो एहतजाज करना अपना हक रखते हैं। पुलिस का मौक़िफ़ मैंने आपको बता दिया है कि ऐसी कोई बात हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस को कन्वे नहीं की गई थी जिसमें यह बताया गया हो कि यहाँ कोई इनॉग्रेशन होना है, एक हॉस्पिटल की एक्सटेंशन है, हॉस्पिटल की एक्सपेंशन है, या ऐसी कोई चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं था, ना सरकारी कागजों में ऐसी कोई बात थी। वो वहाँ पर अचानक आए, उन्होंने वहाँ इफ्तिताह करना था, अपना प्रोग्राम रखा हुआ था, अपनी फट्टी लगानी थी। और इलाका मकीनों से भी आप सुन चुके हैं कि फट्टी तक वो अपने गाड़ी में रख के लेके आए थे और वो वहाँ फट्टी भी साथ लेके चले गए और अपनी जूतियां वहां पर छोड़ गए। मूसा इलाही साहब से हम दोबारा भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हम यहाँ गुजरात शहर के अंदर या इस कोटला तहसील के अंदर मौजूद हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे रब्ता कर सकें और उनसे ये तमाम कहानी सुन सकें, उनका मौक़िफ़ ले सकें। हमारे साथ जी हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरात स्टेडियम में, जिसे ज़हूरुल्लाह स्टेडियम भी कहा जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं मूसा इलाही साहब के तर्जुमान कामरान भट्ट साहब। कामरान भट्ट साहब भी उस दिन उस जगह पे मौजूद थे और जब ये तमाम इवेंट हुआ ये वहाँ मौजूद थे। इनसे बात करते हैं क्या हुआ, और ये उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं और उनके मौक़िफ़ देने के लिए आए हैं। उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम जनाब, अल्लाह का बड़ा एहसान, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या वाक़या हुआ, ये हुआ क्यों, वहाँ पर हॉस्पिटल में गए क्यों, क्या वजह बनी, और वो हॉस्पिटल का मसला क्या है? हॉस्पिटल का कोई मसला नहीं है, ठीक है। पहले सियासतदान करते आए हैं शुरू दिन से गली नालियों की सियासत वहाँ पर, ठीक है, इसमें नो डाउट वहाँ पर गली नालियाँ तो बहुत बनी हैं। लेकिन एक बंदा जो अभी इलेक्टेड नहीं हुआ, अगर वो हमेशा से कहते थे कि जब कभी हमारा पंजाबी में कहते हैं कि संगी हथ पिया, तो मेरे ये दादा का हल्का है, मेरे दादा के चाहने वाले हैं, मैं यहाँ के लोगों की तकदीर जरूर बदलूंगा। अभी वो जो भट्ट साहब लड़ाई है जी जी, वो लड़ाई हो रही है हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल का क्या मसला है? वहाँ का ये मसला है कि वो कोटले में है, ठीक है, कोटले में वो ये कहते हैं कि हमारी इजाजत के बगैर कोई बंदा पर भी ना मारे। ये अस्पताल जो उनसा है इसकी जमीन सरकारी तो नहीं है, ये तो लोगों ने वहाँ डोनेट की हुई है। जब डोनेट की लोगों ने तो वो सरकार के नाम चलेगी। सरकार में जो मूसा इलाही साहब है वो सरकार में नहीं है। परवेज इलाही साहब तो है। क्या मतलब, उसका जो बच्चे उसकी खानदान सारा सरकार में होगा? बात सुने, अगर भट्ट जी ऐसे ना करें, ना सर मेरी बात सुने ना। हाँ चलें, सुनाएं। मियां नवाज शरीफ सब सरकार में हो, ओहो, हम शहबाज शरीफ कर सकते हैं सब कुछ। आपके बकौल वो तो चोर है। नवाज कर सकती है। मेरी बात सुने, आपके बकौल वो चोर है। अच्छा वो करें, वो ठीक है, हम करें वो गलत है। वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। भट्ट जी मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि अगर मूसा इलाही साहब किस कैपेसिटी में वहां पे गए थे वो इफ्तिताह करने के लिए? वो इफ्तिताह इसलिए करने गए थे क्योंकि उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट पर
परवेज इलाही साहब से 2 अरब रुपए की कैबिनेट में मंजूरी ली। 16 जनवरी को जब वो इफ्तिताह करने जा रहे हैं तब तो हुकूमत डिसॉल्व हो चुकी हुई है। मैं आपको सारी चीजें बताता बट जी, हूं। मैं आप सियासी आदमी है, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ किस कैपेसिटी में कर सकते आप हैं? मेरी बात सुने, कैपेसिटी उनकी यही है कि वो चीज उर्लाई के बेटे बस, होते हैं, बस। बजाज साहब के बेटे हैं, बस। परवेज इलाही के भतीजे हैं, बस। MNA के भाई बेटे हैं। बस, मैं इसी सियासत को तो खत्म करने आया हूँ, ये खानदानी सियासत। क्योंकि मरियम नवाज पे, बिलावल पे, इन लोगों पे हम ये लगाते हैं कि यार ये मूर्सी सियासत करते हैं, मूर्सी ठीक है। चलते हैं। अब मरियम नवाज किसी जगह पे कोई ऐसी चीज यूज कर ले, हम कहते हैं नहीं गलत किया। अभी बिलावल, उनके इमरान खान साहब के बेटे भी आए, वो सरकारी प्रोटोकॉल में, हमने कहा चलो यार बच्चे हैं, वो आ गए किसी कैपेसिटी में कुछ बिल्कुल कर दो। ठीक लेकिन बात। यहाँ पर एक वकूआ हुआ है, मैं उस वकूए पे बात कर रहा हूँ। ठीक है। वो वकूआ क्यों हुआ, वहाँ का मौकफ ये है कि वो एक तो हॉस्पिटल जो सा आप कह रहे हैं कि हमने उसकी ग्रांट दिलवाई, ये दिलवाई, जो वहां पर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, उसको किसी किस्म की ऐसी चीज का पता ही नहीं है। क्या आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं है। हेल्थ जी डिपार्टमेंट से बात जी जी की है? बिल्कुल की है। ठीक है। उन्हें कोई ऐसा मौकफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इवन हेल्थ डिपार्टमेंट ने पुलिस तक को इन्फॉर्म नहीं किया था कि यहाँ पर ऐसी कोई इनॉग्रेशन या ऐसी कोई चीज होने जा रही है। कोई फिजिबिलिटी मैं रिपोर्ट नहीं आपको है। सब कुछ दे देता हूँ। अच्छा, जब बजट एलोकेट हो जाए, सियासतदान तो वही होता है ना जो आवाम की खिदमत करे। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूँ भट्ट जी कि किस कैपेसिटी में वहां चले जाते परवेज इलाही साहब, मूसा यूं ये हमारे मुनस इलाही साहब हैं, ये MNA हैं, ये हुसैन चले इलाही जाते, साहब। हुसैन इलाही साहब चले जाते, उनके बड़े भाई वो चले जाते, मूसा इलाही साहब क्यों गए? क्योंकि वो वहां पर NA 71 से, जो कि अभी मौजूदा 62 है, वहां से NA वो कैंडिडेट भी हैं MNA के। लेकिन नहीं, मेरी एक बात तो मेरी सुने ना। और ये आप एक ज्यादती ही हो सब- जाएगी। नहीं, ज्यादती नहीं, मेरी बात सुने। मूर्सी सियासत के तो नहीं, खिलाफ नहीं, हैं नहीं, नहीं, आप। इमरान खान के, अब तो आपके लीडर बदल गए मेरी हैं। बात सुने मोहतरम, आपकी बात ठीक है कि मुरूशी सियासत सारी इधर ही ना ले। खान साहब ने लेकिन मना एक- किया एक हुआ मेरी ना, बात सुने, हमारे बात लीडर सुने। बदल गए। आपके- मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ मूसा इलाही साहब वो ही क्यों नहीं कर सकते, ये आप मुझे बता दें। भाईजान किस कैपेसिटी में क्यों नहीं कर सकते? क्यों कर सकता? क्या कुछ कोई कानून है? क्यों कर कोई सकता? बंदा नहीं कर सकता? क्यों कर सकता? कोई कानून है? क्यों कर कोई सकता? जिरा है? इसके ये- अलावा हमारे पास कोई जगह नहीं। भाईजान जगह क्यों नहीं है हमारे लिए? और है। वो एक अवामी रहनुमा है और उन्होंने साबित किया ये फंड ला कोटले में साबित वहाँ किया है। लोगों ने वहाँ ईंटें मार दी, आप कह रहे हैं अवामी ने। वो कोटले के लोग नहीं है। मैं बात बताऊं, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं आपको निशानदेही करता हूं, आपने वो चलानी है। 6 भाई हैं जो उन सब के उन सब के गनमैन है। नहीं वो सारे आम लोग थे, वहाँ पे आज भी मौजूद है। मैं बताता हूँ, आप वो उनकी आज भी तस्वीरें मौजूद निकालें, है। मैं आपको वीडियो देता हूँ, आपने चलानी है सारी अच्छा, साथ बिल्कुल, साथ। हम चलाएंगे। वो जो लोग वहाँ पर साथ-साथ मौजूद चल हैं वो रही हैं। सारे उनके, कोई सेक्रेटरी साथ-साथ चल रही हैं, हैं। कोई उन शेयों के गनमैन है, उनके सारे मजारे हैं, उनके चाय लाने वाले ये अड्डे मैनेजर है जहाँ से वो बते लेते हैं, वो सब वो है। ये सियासी रवादारी को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो उन्होंने तशख्खुस पामाल किया है, इसलिए किया ना कि ज़रूरत का नाम वहाँ पर ना लगे। दोबारा हुकूमत में आके ये दोबारा सुरला अस्पताल ही देखिए, वैसे मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान साहब भी इन चीजों के बड़े खिलाफ हैं। किस कि चीज ये के? नाम कर देना, माँ बाप के नाम, क्यों इस तरह न किसी के नाम करें? खान साहब ने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, वो चैरिटी का पैसा ना है। वो हम करने गए थे। बट जी वो चैरिटी का पैसा है, वो जिसके मर्जी नाम करे। हमने इमरान खान के नाम को दिया, इमरान खान अपनी अम्मी के नाम पे करे कर दे। लेकिन ये सरकारी पैसा है ना बट जी। अच्छा। ये तो सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार की जगह है, आपका मेरा एक पैसा अभी है। आप कह रहे हैं ये सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार की जगह है, तो सरकार जाए और ना। दूसरा आप ये भी सवाल मेरे साथ कर रहे हैं कि भाईजान वो मूसा लोगों की इलाही private दी सरकार, जगह भी थी। मूसा इलाही सरकार नहीं है। परवेज इलाही सब तो हैं, तो मूसा इलाही का क्या ताल्लुक है? भतीजे हैं उनके। मेरिट का सिस्टम तब आएगा पाकिस्तान में जब ये जो खानदानों की सियासत है ये खत्म हो। उनका भतीजा नहीं कर सकता यार ये कर मुझे सकता, बता दें। आप कर क्यों नहीं कर सकते? सकते? कर सकते हैं, नहीं कर सकता कर बट सकते जी। हैं आपका ना। नया लीडर अब कहता है आप नहीं कर अब सकता। आप चाहिए। आपका नया लीडर मेरा को, लीडर चौधरी मूसा इलाही है। उनका इमरान खान है ना। मेरा तो वो है। दादा लीडर जो उनसे है वो कह रहे हैं नहीं कर सकते। मेरा लीडर चौधरी मूसा इलाही और चौधरी वजाहत है। अवामी खिदमत जो है वो तो जो भी करे उसको मंजूर करना इमरान चाहिए। खान का लेकिन नहीं एक हो और सकता बात मैं आपकी कर बट जी, सकता हूं। इमरान खान का नहीं जो हो सवाल जो चीज आप लेना चाह रहे हैं वो मेरे से नहीं आपको मिलेगी। नहीं, मैं भी थोड़ा सा मैं कारीगर लेना नहीं कारीगर, मैं कारीगर नहीं हूँ बट जी। मैं नहीं, सवाल पूछ रहा है, हूं। मुझे पता है। आप कारीगर हैं, मैं बताता हूं आपको। मैं कारीगर नहीं हूँ। ठीक है, आप कारीगर हैं। जो आप खान साहब की बात कर रहे हैं, उनका अपना हर बंदे का अपना अपना विजन होता है। नहीं, अब आपके लेकिन लीडर हैं। यहाँ पर जो है अब आपके लीडर हैं वो वो। मामला ही कुछ और। उनकी इज्जत करें, लीडर है वो। बिल्कुल हम उनकी रिस्पेक्ट बिल्कुल ठीक है, हाँ। ये हमारे लिए काबिल माशाल्लाह, उन्होंने माशाल्लाह। एक शौर दिया है माशाल्लाह। और ये जो उन्हीं का दिया हुआ शौर है कि मूर्सी नहीं। तो खानदानी सियासत है ये खत्म करनी है। जो मूसा इलाही साहब कुर्सी वो नहीं अक्सर होगी। खान साहब को सुनते हैं। हाँ, सुनना खान चाहिए। साहब को सुनते भी हैं और आप देखें हमारे मानना सामने भी- कैंडिडेट बट जी, मानना भी है चाहिए। एक तो जाहिल, एक तो कातिल, बताखोर, कब्जा माफिया, कौन सी चीज नहीं है। बट जी इबलीस के खिलाफ लड़ रहे हो, पर लड़े तो अपने चलें, ये फरिश्तों तो के अच्छी बात असूलों है, पे ना। ये तो- या आप भी इबलीस की पैरोकार बन के इबलीस के असूलों पे चलना है आपने। मेरी बात सुने, कोई ऐसे ही बंदा होता है अगर ना। कोई बंदा अगर हुकूमत से कुछ चीज लेके आता अच्छा। है, उसका अगर वो इफ्तार करवाता है, वो इबलीस का बंदा बन गया।
बट जी मैं वो तो गलत हो गया। ये तो आप ही ने सिखाया, आपके लीडर ने सिखाया। ये कोई नहीं, ये कहीं पर भी नहीं, किसी ने भी नहीं सिखाया। लीडर ने कहा कि अगर कोई बंदा किसी चीज का फंड लेके आता है, मरियम उसका नवाज क्यों करने फंड जाता है। देती है भाट जी, उसने कहा मरियम नवाज क्यों फंड देती है, सारों ने उसके खिलाफ बोला मरियम नवाज को फंड नहीं देना चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा मरियम नवाज पार्टी में ओहदेदार है। इमरान खान ने आज तक फंड्स की बात नहीं की, तरक्याती काम जिससे आवाम को फायदा पहुंचता है। इस मौके पे हमारे प्यारे लीडर फरमाते हैं कि बेशरम आदमी तुम्हारे बाप का पैसा है। बेशरम आदमी तुम्हारे बाप का पैसा है। ये कौम का पैसा है, कोई क्यों जाके लगाए अपना नाम ले। कौम का पैसा है, यही तो बात है ना सारी। कौम का पैसा कौम के ऊपर लग रहा है और तकलीफ नून लीग वालों पे हो रही है। फटियां तो आपके नाम की लगनी है ना, फटियां तो मूसा इलाही के अब्बू जी और दाया जी दादाजी के नाम की लगनी है ना। यही तो बात है। फटी की तकलीफ और तो जो सबको होती उनको है। तकलीफ थी वो हमने दूर की है। वो मारते गोली, वो मारते बम, वो जो मर्जी करते। वो तो ईंटें उन्होंने फीता बेचारे हमने मारी। काटा है। अच्छा, उन्होंने 11 बजे ये कहा था कि अगर फीता काट जाओ ओए। तो अपने वालिद की वल्दियत बदल। चैलेंजिंग बात। फीता चैलेंज काटा के लिए है। आपने फीता असूल काटा तोड़ है। दिए, फीता अपने काटा है। पार्टी के असूल टूट गए भाट जी। नहीं, इसलिए कोई मैं असूल कह नहीं रहा रुका, नहीं रुका। हूं। खान साहब ने कहा था कि आवाम के लिए, आवाम जो चीज आवाम के लिए लाई नहीं, जाए, दादाजी वो के कुछ नाम नहीं के है। लिए और पार्टी के लिए और जिद के लिए जाके फीता भी काटा और वहाँ लड़ाई भी की और अपना वो ईंटें शीटें भी हम पड़ गई। एक दिन पहले अनाउंस करते हैं कि अब सुबह हमने ये काटना है। पुलिस इन्फॉर्म्ड नहीं थी, इफ्तार करता है। पुलिस इन्फॉर्म्ड नहीं थी। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कर दी हमने। हेल्थ डिपार्टमेंट है इन्फॉर्म्ड नहीं था। ठीक है, तो फिर क्यों ये कैसे हो गया? अभी आपने जो बड़ी अच्छी बात कर दी है कि पुलिस इन्फॉर्म नहीं थी। एक तो हमारे ऊपर से धब्बा उतर गया कि पुलिस की इंतजामिया की मदद से ये वहाँ पर पहुंची जब है। वहाँ पर सारे एक आप बात उतर जब गई। वहाँ पर आपने कह दिया कि चौधरी परवेज इलाही साहब के भतीजे जा रहे हैं और वो पूरा लाओ लश्कर लेके जा रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की तो मैं कसम सिचुएशन उठाकर कहता हूँ 5 गाड़ियाँ थी। माशाल्लाह 5 गाड़ियों में अगर 4-4 बंदे भी हो या 5 बंदे भी, कितने बन जाएंगे? क्रूजर थे, 25 बंदे। क्रूजर थे और 25 डाले बंदे हो थे। जाएंगे, 25 बंदे हो जाएंगे। क्रूजर थे और डाले 5 थे। बंदे आगे कितने थे ये सोचें। आपने इन्फॉर्म नहीं किया था कि वहाँ पर इफ्तिताह हो रहा है। आप कह रहे हैं पुलिस इन्फॉर्म ही मैं नहीं। वही तो कह रहा हूँ कि आपने इन्फॉर्म नहीं किया था कि इफ्तिताह होना है। 11 बजे वहाँ पर कुर्सियां लग गई, टेबल सज गए, वहाँ पर कुछ गुंडे जाते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को भी वहाँ से भगा देते हेल्थ हैं। डिपार्टमेंट ने पुलिस को बताया नहीं, मैं पुलिस का मौकफ लेके आया हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट- पर्चा दर्ज हुआ हुआ है, हाँ जी, उसमें पुलिस का मौकफ है। उन्होंने कहा कि हमें ना हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया, हम सीओ से बात कर रहे थे, हम एमएस से बात कर रहे थे, वो कुछ कह ही नहीं रहा था, हाँ। कोई कागज ही अब नहीं दिखा सबसे रहा बड़ी था बात कि ये है इसको कि इसको MS हम THQ कर रहे हैं, वो एक कागज भी नहीं दिखा रहा था। इसका CO स्टेटस हेल्थ बदल रहा है। हाँ, अच्छा। जो कहता कुछ भी नहीं दिखाया गया हमें, अच्छा। ये पुलिस का मौकफ दे रहा हूँ मैं आपको अच्छा। कि हमें कुछ नहीं दिखाया गया, वरना हमने कहा था कि हम मूसा इलाही साहब को प्रोटोकॉल देते, उनको बचाते। नहीं, प्रोटोकॉल तो हमें चाहिए भी नहीं था। चले इसको कट शॉर्ट करते हैं। मूसा इलाही साहब का जाना जरूरी था? बिल्कुल जाना जरूरी था। क्यों? जब आप मेरा एक दुश्मन है, मेरा एक मुखालिफ है, सियासी हरीफ है, वो मुझे कहता है कि यहाँ से तुम गुजर नहीं सकते। माशाल्लाह आप गुजरेंगे। इनने सुबह में एक चैलेंज दिया था कि इफ्तिताह हमें करके दिखाइए। वो चैलेंज उन्होंने किया था, मुकम्मल हो गया, फीता हम काट के आ गए। उनका जो मौकफ है वो ये है, वो कहते हैं कि मूसा इलाही साहब किस कैपेसिटी में हमारे गांव के अंदर हमारी जगह पे अपने दादाजी के नाम की पट्टी और अपनी पट्टी लगाना चाहते हाँ, हैं। ये आपने बड़ा सवाल कर दिया है कि वो ये कह रहे हैं, हाँ, दाढ़ी वाले हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह तो ये कहते हैं एक आंख से 2, दूसरे हाथ को भी पता तुझे तो पट्टियां ना ला चले। रहे हो आप भाई। मेरी भी बात सुने ना जोरे वाला। 15 साल पहले जब इनके अबाओ अजदाद ने वो जमीन अतिया की थी, वहाँ पे अतिया करने के बाद गवर्नमेंट के नाम पर होगी। ठीक है भाई। आज कौन सा वेला है? तकलीफ वो नहीं थी, तकलीफ इनको सिर्फ ये थी कि चोजोर आप फटी ना लगे। कोटले के सिर्फ नाम ये पे- तकलीफ ये थी। मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूँ आपकी बात से। आपने मुझे कहा कि वो सिर्फ परवेज इलाही का भतीजा है इसलिए गया था, बस। अवामी रहनुमा है। अवामी रहनुमा तो भाईजान मैं भी हूँ, मैं भी लोगों में वो मेरे नाम से आप नहीं- पट्टियां लगवा आप लें। नहीं कर सकते। नहीं भाईजान नहीं कर सकता, क्योंकि वो सरकार का पैसा है, अवाम का पैसा है। प्यारे खान साहब कहते हैं बेशरम आदमी तुम्हारे बाप का पैसा है। प्यारे खान साहब उसके लिए कहते हैं जो करे करप्शन। मरियम नवाज ने की, उसको पकड़े, बंद करें, किसी को बाहर ना भेजे बिल्कुल। और एंड पे ये ना कहें कि मैंने उन्हें किया। वहाँ से क्या जाके मोनसलाई अपना इलाज करवाएंगे? आप हुसैन बताएं। इलाही करवाएंगे? ये आप बताएं। नहीं करवाएंगे। ये आप बताएं। मूसा इलाही ने भी नहीं करवाना, अवाम ने करवाना है। ब्रदर कौम का तो पैसा, कौम के ऊपर लग रहा है। तो कौम का नाम लगना चाहिए। तो कौम के नाम है ना, कोटला का कौम के हॉस्पिटल नाम है होना ना। चाहिए, कोटला हॉस्पिटल होना चाहिए। कोटला की आपके अवाम वक्त- को कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके इतनी वक्त- खुश है ना कोटला की अवाम इस चीज से। अच्छा, वो वहाँ पर लोग जो हैं वो एजुटेशन दरबारी शो हैं। कर रहे हैं। वो दरबारी हैं। हो? वो दरबारी। चलें ठीक। कोटला की अवाम आपका बड़ी खुश है मौकफ इस आ गया। मामले से। मेरे ख्याल से जो गवर्नर भट्ट साहब ने मूसा इलाही साहब का मौकफ दिया है वो भी आपको बड़ी तरह समझ आ गया होगा। शबीर अहमद कोटला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स MP हैं इस PP से, PP 33 है ये। और यहाँ पर जो वाकया हुआ वो क्या वाकया था वो हम उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं। शबीर साहब कैसे हैं आप? जी बहुत ठीक शुक्रिया, ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया? ये ईंटें चल गई, पत्थर चल गए, बंदे भाग गए और वो सुनने में आया चोई साहब के बेटे थे, वजाद साहब के। क्या हमें समझ नहीं आई, क्योंकि हमने ना सोशल मीडिया पे ये वीडियोस चलती हुई देखी
کہ جی اس طرح پتھر مارے گئے ہیں اور وہ ان کا بیٹا جو ان سے وہ دیکھا وہ ان کو چھپا کے بھاگ رہے ہیں، وہ کیا ہوا تھا یہ ماجرا؟ دیکھیں جی، ٹو بی آنیسٹ یہ جو جس علاقے میں آپ بیٹھے ہیں اس کی ماضی کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، اور ریزسٹنس جب بھی الحمدللہ شروع سے آج سے نہیں، چودھری ظہور الہی کے ٹائم سے اس علاقے کے لوگوں نے انہیں ریجیکٹ کیا اور آج تک الحمدللہ کبھی وہ اس حلقہ میں آئے نہیں۔ اچھا، تو دے آر موسٹ ویلکم اگر آپ اپنی کسی ویژن کے ساتھ آتے ہیں اور لوگ آپ کو ویلکم کہتے ہیں، نو ڈاؤٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، تو ہم ان تمام مسائل سے جن میں میرا خاندان الجھا رہا اور وہ بھی بیکاز آف دس فیملی کے، ان کی شروع سے سیاست کا جو وتیرہ رہا ہے کہ فیملیز کو ڈیوائڈ کر کے ڈیوائڈ اینڈ رول پہ، اور آپ یہ میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ ماضی میں آپ دیکھیں کہ گجرات کی وجہ شہرت جو ہے قتل و غارت تھی، جی بالکل، اس کے بعد ایک دور آیا الحمدللہ جب امیر و ترقی کے حوالے سے گجرات کی مثالیں دی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو کوٹلا ہے ایک بڑا نگلیکٹڈ ایریا تھا پچھلے 30 سال سے، تو یہاں پہ ہمارے جو مقامی لوگ ہیں، ہم نے فیوچر پلاننگ کرتے ہوئے اپنے آنے والی نسل کے مستقبل کے لیے ہیلتھ اور ایجوکیشن جو بیسک سیکٹرز ہیں آپ کو پتہ ہے، اس کے لیے جگہ ڈونیٹ کی، تقریباً 38 کنال ہم نے اور ہماری برادری کے جو مخیر کوٹلا برادری نے یہ مختص کی 2 منصوبوں کے لیے، 38 کنال سول ہاسپٹل کوٹلا کے لیے، ٹھیک ہے، اور 7 گرلز ڈگری کالج کے لیے تقریباً اتنی 40 کنال کے لگے۔ یہ آپ کی زمین تھی جو ڈونیٹ کی ہے، اور برلبے سڑک ہے، اور اس وقت اس جگہ کی جو برلبے جو کاسٹ ہے وہ بہت قیمتی ہے، 20 لاکھ کے قریب مرلہ ہے کاسٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگوں نے ہم نے کیا، اور الحمدللہ گرلز ڈگری کالج کوٹلا جو ہے وہ بڑا ڈسٹرکٹ کے اندر بڑا نمایاں انرولمنٹ کے حوالے سے، ریزلٹس کے حوالے سے 2000 کے قریب ہماری انرولمنٹ ہے بچوں کی، اور آج اس بستی کے اندر غریب کی بیٹی کوئی بھی بچی جو ہے وہ ماسٹرز اور گریجویٹ کی ڈگری لے کے بیٹھتی ہے۔ تو اس طرح چیزیں چل رہی ہیں، یہ آئے ہیں نیو کمر ہیں اس حلقے میں، ان کو نیا شوق ہے۔ ہوا کیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ بات اس طرح سے ہوئی تھی کہ یہ جب ان کی گورنمنٹ آئی اقتدار کے نشے میں، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ گجرات میں جو کچھ ہوا اور جو پنجاب میں ہوا، جس طریقے سے ان نے لوٹ مار کی، یہ یہاں پہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے تھے کہ جی ہم لوگوں کو بتا سکیں جی یہ ہمارا کام ہے، کام کریں اس میں ہمیں کوئی، لیکن انہوں نے بیسیکلی ایک شرارت کی۔ ان نسلوں میں ایک چیلنج دیا تھا کہ ابتدا ہمیں کر کے دکھائیں، وہ چیلنج انہوں نے کیا تھا مکمل ہو گیا، فیتا ہم کاٹ کے آ گئے۔ انہوں نے ہماری رٹ کو چیلنج کرنے کے لیے، اور کوٹلا کی ایک تاریخ ہے اس ہسٹری کو انہوں نے چیلنج کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے بار بار ان کو وارن کیا ہے، عوامی جلسوں میں کیا ہے، ہر فورم پہ کیا ہے، اور جب ڈسٹرکٹ کونسل میں ہمارا ان کے ساتھ 1 to 1 مقابلہ ہوا ہے، اسی موسیٰ الہی کی اور چودھری وجاد کی سسٹر اور پرویز الہی صاحب کی ہمشیرہ سمیرہ الہی کو ہم نے ڈسٹرکٹ کونسل میں شکست دی ہے۔ ہم نے کہا آئیں، سیاسی ہے، آپ نے سیاست کی ہے، ڈسٹرکٹ میں ہمارا 1 to 1 آپ سے ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سیاست ایسی ہوتا ہے نا، سیاست میں انہوں نے یہ شرارت کی کہ آخری دنوں میں ایک کیبنٹ کمیٹی میں ایک اپروول لے لی، کیونکہ یہ چیف منسٹر تھے، اور دیکھیے اس طرح کی اپروول، سی ایم ڈائریکٹیوز، یہ تو میں خود 13 سے 18 میں رہوں، 20 ہیں، ہم نے چلڈرن ہاسپٹل کھاریاں بنوانا چاہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلڈرن ہاسپٹل بن گیا سی ایم کی اپروول کے بعد، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے فیزیبلٹی دیکھی جاتی ہے، فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں، ایک سرٹن پروسیس ہے جس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو الحمدللہ افتتاح بھی کر کے آیا ہوں، آج آپ کے سامنے بیٹھے پٹی لگانے آ گئے تھے۔ یہ پٹی لگانے آگے جلدی میں، کیونکہ ادھر سے بھی چھٹی ہو رہی تھی، انہوں نے سوچا، ہم نے ان کو منع میں نے سنا 16 جنوری کو ہے، 16 جنوری میں چھٹی ہو چکی ہوئی تھی۔ یہ اسی طرح کے کام ہے نا ان کے، جس طرح آپ نے اس کے والد صاحب کی آڈیو آپ نے سنی ہے ٹیپ، وہ کہتے ہیں کہ بی بی کو غائب کر دو، وہ یار انہوں کے آگے پیچھے کر دو، مطلب ان کی بیسیکل مینٹیلٹی یہ ہے۔ ان نسلوں میں ایک چیلنج دیا تھا کہ ابتدا ہمیں کر کے دکھائیں، وہ چیلنج انہوں نے کیا تھا مکمل ہو گیا، فیتا ہم کاٹ کے آ گئے۔ ہم نے کہا کہ اس طرح نہ کریں گے، پچھلے 2-3 دن سے فیس بک پہ چل رہی تھی جی کہ ہم نے اس کی افتتاح کرنا ہے اور پلیٹ لگانی ہے، اور سب سے بڑی جو زیادتی یہ کی ہے کہ انہوں نے اس کا نام چینج کیا ہے، اس کا نام کا ڈائریکٹو کروایا ہے چودھری ظہور الہی ہاسپٹل۔ بھائی چودھری ظہور الہی ہاسپٹل آپ نے بنانا ہے تو دے اپنی جگہ۔ اس پہ ہمارے لوگوں نے فوراً رابطہ کیا، برادری کے لوگ جنہوں نے اپنی قیمتی اراضی دی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کے نام پہ کیوں نہ نام رکھیں۔ ٹھیک ہے، فیئر انف، ٹھیک ہے، مطلب بڑی سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ اپ گریڈ کریں۔ آپ یہ آئے اس دن 16 جنوری کو، یہ آپ کو بتائے بغیر آئے؟ نہیں، انہوں نے دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی تھی کہ ہم نے ہر صورت پہ آنا ہے، ہم نے ان کو کلیئر میسج بھیجا کہ ہم اس طرح نہیں کرنے دیں گے، یہ 2 نمبری جو ہے یہ کوٹلا میں نہیں ہوگا۔ وہ تو پورے اسکواڈ کے ساتھ آئے تھے۔ جی جی، وہ ان کی عادت ہے، یہ اسکواڈ ان کے ساتھ صرف جس طرح یہ بھاگا ہے، اور مجھے حیران یہ اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ آپ، ابھی میں کل ایک انٹرویو سنا، دیکھیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں یہ کوٹلا والے لوگوں کی بہتری کے لیے، وہ کوٹلا والے لوگوں کی بہتری ہے تو تھرو پروسیس آؤ پراپر۔ وہ ہاسپٹل میں نے سنا ہے کہ ابھی پورا THQ کا اس کو درجہ نہیں مل سکا۔ سر ہے ہی نہیں، جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ اس کا رف کاسٹ ایسٹیمیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہم سے مانگا ہے، کسی وہ بھی ابھی تک نہیں ہم نے بھیجا، سو اٹ مینز یہ ابھی باتوں میں ہے۔ اس کا مطلب بھائی جان جو صرف پھٹی لگانے، صرف پھٹی لگانے ہیں، جو پھٹی لگوا گئے تو چلے گئے، پھٹی تو بڑی بری لگ گئی۔ ان کا وتیرہ ہے، ان کی پرفارمنس کی بات کریں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے
آپ मोनस लाई के इलाके मैंने का सुना है 83 अरब रुपया आया सर शहर लाहौर में, ये बात तकरीबन बड़ी 100 मशहूर अरब है। 100 अरब से ऊपर है। 25 अरब तो वो मंडी बहाउद्दीन चला गया ना भट्टी साहब को, ये 25 जो 83 अरब है वो सिर्फ 83 गुजरात है। अरब में से ये आप देखेंगे कि इनकी जेबों में कितना गया और बना गया, मंसूबे क्या, हेल्थ का एक मंसूबा बता दें, एजुकेशन का एक अजीज मंसूबा भट्टी शहीद बता हॉस्पिटल दें। की बड़ी बुरी हालात है। अच्छा, लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही। सिर्फ क्या हुआ है कि जबरदस्ती ये हमारे चौधरी मोनस लाई के हल्का के साबिक चेयरमैन बैठे हैं भट्ट साहब, अच्छा उस हल्का में लोगों की जबरदस्ती जमीनें थे आई गई, ठीक है। और फिर उन जमीनों को क्या किया गया कि डिविजनल, देखिए गुजरात को डिवीजन इसलिए नहीं बनाया कि गुजरात के लोगों की बेहतरी की है, उन्हीं जमीनों में उसके कॉम्प्लेक्स आएंगे। वो जमीनें जो इन्होंने हजारों में रुपयों में एकड़ जबरदस्ती लोगों से ली हैं, उसके अंदर दीगर हाउसिंग सोसाइटीज ला रहे हैं। बेसिकली ये कमर्शियल लोग हैं। इनने सुबह में एक चैलेंज दिया था कि खुदा हमें करके दिखाइए, वो चैलेंज उन्होंने किया था मुकम्मल हो गया, फीता हम काट के आ गए। अच्छा भाईजान, आपका नाम क्या है और आप मोनस लाई के हल्के से कौन से? बिल्कुल, मेरा शाहिद असलम भट्ट है, साहब का चेयरमैन यूसी लंगे। साहब चेयरमैन है आप? जी हाँ। अच्छा, तो आप उनके हल्के से हैं? हल्के से हूँ, उनको अबाई हल्का है उनका। ठीक है, तो वो तो जो 83 अरब की बात मैं शबीर भाई से कर रहा था, वो तो 83 अरब नहीं, 100 अरब रुपया। अच्छा, 100 अरब रुपया। जी हाँ। तो कहाँ मंडी का अलग है, इसका गुजरात का 100 रुपया अलग आपका है। जो वहाँ अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल है वो ही ठीक नहीं बना हुआ अभी, तो उसके अंदर ही बड़े उसके लिए तो मसाइल कुछ ये तरक्याती काम जो ये बस गलियां नालियां वगैरह बन रही हैं, ये कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट तो है नहीं है जो अवामी फलाह के लिए हो। कोई हैं। क्या करते हैं, कहाँ पैसे लगाते हैं, क्या पैसे लगाते हैं? पैसे लगाते यही है कि आप कभी जाके हमारे हल्के में देखें ना पैसे कहाँ लग रहे हैं। आपका ताल्लुक नून लीग से है और आपके जो भाई हैं आबिद रजा साहब वो MNA हैं, सिटिंग MNA है नून लीग से यहाँ पर। तो आप जो पैसे लगाने की बात कर रहे हैं, आपके भाई को भी तो फंड मिला है अभी जो रिसेंटली रिलीज हुआ है, आपने कहाँ लगाया? लेकिन जी उसका भी मैं उसको पेपर भी आपको देता हूँ, वो यूसी लेवल पे जो देखें वो फंड हमें जो रूटीन में 50 करोड़ रुपया, उसके लिए 5 करोड़ रुपया जो हमने ऐसे इजाफी आबादियों के जो उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसके लिए मुख्तस किया। और 45 करोड़ जो है वो यूनियन काउंसिल फी, यूनियन काउंसिल 2 करोड़ रुपए, वो कुछ भी नहीं है आज के हिसाब से। अच्छा, ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें पुलिस भी मैंने देखा भाग रही है, वो चीजें वो हाथ बचा रही है, पुलिस के लोगों को पकड़ भी रही है, पुलिस ने क्या किरदार अदा किया? पुलिस ने सही मानों में साबित किया है कि वो चौधरी उनके घर की लोंडी है। मेरी 11:30 बजे DPO गुजरात साहब से बात हुई है। अच्छा, बड़े मोहतरम है, मैंने उन्हें कहा जी ये इस तरह से कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही। मेरी DC गुजरात से बात हुई है, CO हेल्थ से हुई है। अच्छा, और इस तरह से एक आदमी है, वो काउंसलर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आके अपनी तख्ती लगाना चाह रहा है जबरदस्ती। उन्होंने मुझे कहा जी कि देखे चौधरी साहब, सिंपल सी बात है, ये प्रेमिसेस जो है हॉस्पिटल का, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है। आप CO हेल्थ को कहेंगे, वो अपने MS को गए, MS 15 पे कॉल कर दे कि इस तरह कोई बंदा जबरदस्ती आ रहा है तो हम उसको रोक देंगे। मैंने कहा जी दैट्स फाइन, ठीक है। मैंने CO हेल्थ को कॉल की, उसने अपने MS को कॉल की, MS ने 15 पे कॉल कर दी कि जी आप आके ये सिलसिला हो रहा है, पुलिस की नफरी पहुंचनी शुरू होगी। लेकिन पुलिस देखिए इतनी गंदी गेम उन्होंने खेली है। इन दौरान हमारे लोग, क्योंकि मसाजिद में ऐलानात हो गए, लोग बड़ी तादाद में पहुंच गए और लोग बड़े गुस्से में थे। और ठीक है, आपने जमीन दी हुई है तो गुस्सा तो आना। जो यहाँ पे इस वक्त DSP खारियां और तमाम जो नफरिया पुलिस की दीगर थानों के ऐसे वो भारी नफरी वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने हमारे जो लोग हॉस्पिटल के अंदर थे जो इसको रोकने के लिए, तो उनको कहा जी कि DPO साहब का ऑर्डर आया कि क्योंकि ये प्रेमिसेस हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं तो आप प्लीज मेन गेट से बाहर आ जाए, रोड पे आ जाए। ठीक है। उन्होंने रोड की एक साइड पे हमें करके दूसरी तरफ से एक और रोड आती है, उसके साथ मूसा लाई से कोऑर्डिनेट करके उसको उधर से बुलवा लिया। उसकी जिद थी, क्योंकि वो बच्चा है ना, उसकी जिद थी। और मैं ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने वो शॉट भी देखे हैं। ये हमारे लोग छोड़ने वाले नहीं है। ये इस मिट्टी का एक ऐसा, ये मिट्टी बड़ी सख्त मिट्टी है और ये उसकी किस्मत है कि वो यहाँ से चला गया, क्योंकि जो लोगों के जज्बात थे मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो उसकी जिद थी कि मैंने हॉस्पिटल की बिल्डिंग के सामने जाके मैंने फीता काटना है, जिद में कर रहा था। और पुलिस ने उसको साथ, और आपने देखा है भागते हुए, पुलिस ने उसको रेस्क्यू भी किया है और रेस्क्यू कर रही है। और अगर पुलिस को ये पता था और अगर वहाँ पे जानें ज़ाया हो जाती, और फिर उससे बड़ी जो बात, पुलिस के उसको भगाने के बाद उन्होंने क्या किया है कि फिर पुलिस के सामने खड़े होकर अंधाधुंध फायरिंग की है। सारी रिकॉर्डिंग फुटेजेस मौजूद है। और उसके बाद हमने, मेरी तरफ से एप्लीकेशन हुई है और उसपे कोई कार्रवाई नहीं की। इंशाल्लाह ताला हम ये प्रिविलेज मोशन नेशनल असेंबली में भी डाल रहे हैं। आबिद रजा साहब, इसको हम यहाँ तक महदूद नहीं रखेंगे। मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बिल्कुल वाज़ेह ऐलान कर रहा हूँ कि यहाँ से एक तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। और इमरान खान ने तो एक गुजरात के सबसे बड़े डाकू के साथ समझौता किया, लेकिन गुजरात की आवाम नहीं करेगी। और ये मैं बता दूं DPO गुजरात को और पुलिस को मैं ये कन्वे करना चाहता हूँ कि जो कानून के कायदे के मुताबिक कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है वो हम करवाएंगे। वो हमारा और यहाँ के लोगों का हक है और वो हक लेने के लिए इंशाल्लाह आज हम एक आध दिन में लाए अमल का ऐलान करेंगे। तो हॉस्पिटल दिखाएंगे। तो भाई ये हॉस्पिटल है जनाब जहाँ पर वो पट्टी लगाना चाह रहे थे,
یہ ہاسپٹل کی جو ساری زمین ہے یہ کوٹلہ برادری نے دی ہوئی ہے؟ مخیر ہمارے لوگوں نے دی ہوئی ہے، ان کی جو اپنی ذاتی جائیداد ہے. یہ دیکھیں مین سڑک ہے. اس کو ٹی ایچ کیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کو وہ ٹی ایچ کیو اپگریڈ کرنا چاہ رہے ہیں. کتنے بیڈ ہیں یہاں پر اس کے اندر؟ اس وقت 25 بیڈ ہیں یہاں پہ. ہمارے پاس ایمرجنسی ہے، لیبز ہیں، آپریشن تھیٹر ہے. الاٹ کتنے کروائے ہوئے ہیں آپ نے ابھی؟ کتنے آپ اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ ایکسٹینشن کی دیکھیں ایکسٹینشن کی ابھی تو فیزیبلٹی ہمارے دور میں تو یہ آلموسٹ جو اس ایریے کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اپگریڈیشن ہو جائے اس میں ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے. جگہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ساتھ پڑی ہوئی ایکسٹرا، اور ہمارے لوگ اس کو مزید جگہ دینے کے لیے بھی، جن کے اس بیک سائڈ پہ ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے. کہ ہاسپٹل کو جگہ دینا چاہیے. ڈاکٹرز آتے ہیں یہاں؟ ڈاکٹرز ریگولر ہیں، اسٹاف. ہمارے دور میں تو یہ مثالی ہاسپٹل تھا. یہاں پر وہ بینر، ہاں جی، یہ بینرز وغیرہ لاگے تھے، اور ایک پورٹیبل وہ اپنی جو پلیٹ ہے وہ ایک نصب کر کے لائے ہوئے تھے. وہ ساتھ لے گئے ہیں؟ وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے، اپنا ریبن بھی ساتھ لے گئے. میں ایک چیز پہ حیران ہوں، وہ اس بات پہ کہ لاہور شہر کے رہنے والے ہیں، کراچی رہنے والے ہیں، پنڈی رہنے والے ہیں. وہ ایسا لگتا ہے کہ گجرات جو سا ہے وہ چودھری برادران کا گڑھ ہے. ایسے ایک وہ تاثر ہے. اب وہ تاثر کے اندر جب ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں چودھری وجاہت کا بیٹا جو سا ہے وہ بھاگ رہا ہے اور پتھر آ رہے ہیں پیچھے سے، تو میں وہاں سب کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ چچا جو سے ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، سٹنگ وزیر اعلیٰ. چلو انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی، اس کے بعد بھی وزیر اعلیٰ ہیں. کیا ایسا ماجرا ہو گیا کہ وہ یہاں تک نوبت آ گئی؟ لیکن میں نے سنا ہے وہ یہاں سے الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں آپ کے خلاف. الیکشن کا اناؤنس کیا، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے انہیں کہتا ہوں کہ اب وہ لازمی الیکشن لڑے. میں نے جیسے آپ کو بتایا وہ اپنی پورٹیبل جو پلیٹ تھی وہ بھی ساتھ لے گئے ہیں، اپنا ریبن اور کینچی لے کے آئے تھے ساتھ پاکٹس میں، وہ بھی ساتھ لے گئے ہیں، اور اپنا جوتا صرف یہاں پہ چھوڑ کے بھاگتے ہوئے. وہ یہاں کے لوگوں کو بس ایک چیز ملی ہے ہاسپٹل کو. اس کے علاوہ ایڈیشنل بلاک، اس کی فیزیبلٹی کدھر ہے، اس کے فنڈز ایلوکیشن کدھر ہے، اس کی کو اپروول کدھر ہے. بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیں دکھائیں. یہ جو ہے نا جی سی ایم ڈائریکٹیو، سی ایم اپروول، یہ تو ہم 20 لے کے فائلوں میں پڑے ہوئے ہیں. چلڈرن ہاسپٹل کھاریاں کے لیے ہم نے شہباز شریف صاحب سے اپروول لی، ان کی ٹیمیں آئیں، فیزیبلٹیز بنی، اینڈ پہ چلڈرن ہاسپٹل بن گیا؟ نہیں بنا، بالکل نہیں بنا. آج ایک بات تو ثابت ہو گئی، وہ یہ کہ وہ جو بڑے بڑے تمام سیاستدان ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بڑی سیاست کی ہے، یہ علاقہ ہمارا ہے اور یہ ایریا ہمارا ہے، ہم یہاں کے کنگ ہیں، وہ تو متھ فلاپ ہو گئی ہے. دوستو، اگر یہاں گجرات شہر کے اندر چودھری برادران کی جو آل اولاد ہے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ کسی کے ساتھ کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس سے عبرت پکڑنی چاہیے، یعنی کہ لوگ جاگ رہے ہیں. اور یہ سارا کریڈٹ جو سا ہے یہ ہماری یوتھ کو جاتا ہے، جو کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی لیڈر کے پیچھے لگ کے یہ جاننا شروع ہو گئی ہے، اور اس کو یہ پتا چلتا جا رہا ہے کہ سیاستدان اصل میں ہمارے خادم ہیں. سیاستدان ہماری خدمت کا کہہ کے آتے ہیں، اور خدمت ہم اپنے اصولوں پہ کروائیں گے، آئین پاکستان کے تحت کروائیں گے، کسی کی مرضی کے تحت نہیں چلے گی. یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ موسیٰ الہی صاحب نے کہا کہ وہاں ایک ہاسپٹل ہے، وہاں کے لوگوں نے زمین دے دی ہے، چلو جا کے پھٹی لگائیں، اگلی دفعہ وہاں سے الیکشن لڑ لیں گے اور ان کو کہیں گے بڑا پیسہ لگایا، بڑا سب کچھ کیا. اور لوگ سیانے تھے، انہوں نے کہا بھائی زمین اسی دیتی ہے، پھٹی تو کیویں لا سکنا. تو یہ تمام ماجرا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہم نے، دونوں سائیڈ کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھ دیا اور آپ کو ساری کہانی بتا دی. لیکن لبے لباب یہ ہے، باٹم لائن یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب مروسی سیاست ذرا دھیان سے کرنا بھائی، لوگ جاگ گئے ہیں، قوم جاگتی جا رہی ہے. اور میں بڑا خوش ہوں اس بات کے اوپر کہ قوم نے اپنی آنکھیں کھول لی ہیں. مروسی سیاست ختم ہونی چاہیے. لیڈر میں اگر گٹس ہیں تو اس کے پیچھے جانا چاہیے، لیکن اس لیے فلاں دا پتر ہے، فلاں دا بیٹا ہے، فلاں جڑے نے ولی عہد نے، وہ روک لیں اس کو. آپ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.